Dear students, myself Dr. Zahid Nazir. Today we will discuss about the thyroid and parathyroid glands. Dear students, we have discussed in previous lecture hypothalamus and pituitary gland as a endocrine glands. आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड ग्लैंड्स. Thyroid glands, you know very well, the bilobed gland. It is a bilobed, and it is associated with the in front of trachea. In front of tracheal in front. It is bilobed. This is called left lobe and this is called as the right lobe. The tissues which connects the left and right lobes, they are called as isthmus. And those tropic hormones which stimulates the thyroid glands for their functioning, for secretion of hormones, they are called as TSH, thyroid stimulating हार्मोन. ये वो हार्मोन है जो एक ट्रॉपिक हार्मोन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और स्टिमुलेट करता है बाइलोब्ड थायराइड ग्लैंड को फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज the thyroid hormone. Thyroid hormones. These hormones are thyroid hormone named as T3, T4 and calcitonin hormone. T3 also called as triiodothyronine. This is tetraiodothyronine, that is also called T4 hormones. These hormones are synthesized by the follicular cells which are present. T3 and T hormones are synthesized by the follicular cells which are present in left and right lobes of the thyroid glands. These cells called the follicular cells, and these associated cells are called as parafollicular cells, or we can say that C cells. अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेशन की तरफ देखें कि हार्मोन्स किस तरह बनते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स में, तो दिस इज द फॉलिक्यूलर सेल्स. हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं. दिस इज द फॉलिक्यूलर सेल्स एंड इट इज लाइंड बाय द एपिथेलियल या क्यूबाइडल एपिथेलियम, और वी कैन से दैट एपिथेलियल क्यूबाइडल्स. दिस इज कॉल्ड एज क्यूबाइडल epithelium. Cuboidal epithelium, and this is called as lumen. These cuboidal epithelium responsible for trapping of iodine. They are also responsible for trapping of iodine from the interstitial fluid, and this lumen is filled with the specialized proteins that is called as thyroglobulin protein. अब इसके अंदर क्या है? थायरोग्लोबुलिन. और ये सीक्रेट कहां से होती है? दिस इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम.
और आयोडीन को भी ट्रैप कौन कर रहा है? कोवैडल एपिथेलियम। अब जब these thyroglobulin is composed of tyrosine amino acids, these are modified amino acids, and जब इसमें एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन अटैच होता है तो ये बन जाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन। इसी तरह जब दो आयोडीन मिल जाएंगे ये बन जाएगा डाई आयोडो टायरोसिन। सेम एज जब वन मोनो आयोडो प्लस डाई तो ये बनाते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन और टायरोसिन, दैट इज कॉल्ड T3। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हुई है? जब दो आयोडो और एक मोनो मिले हैं, एक आयोडो और एक मोनो मिलकर बनाएंगे ट्राई आयोडो थायरोनिन, दैट इज कॉल्ड T3। इसी तरह जब दो डाई आपस में मिलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन तो ये बनाएंगे टेट्रा आयोडो थायरोनिन, विच इज आल्सो कॉल्ड एज T4 हार्मोन्स। तो ये हमारे पास दो किस्म के हार्मोन थे, T3 और T4। इट इज आल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन हार्मोन। T3 और 4 हार्मोन आल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन, एंड T3 and T4 hormones are the hormones secreted by the follicular cells. Here some associated cells are there which is called as parafollicular cells, which is also called C cells. They secrete calcitonin hormones. Calcitonin hormone, and this calcitonin hormone is a peptide hormone. What hormone? It is called as peptide hormone, and it is hypocalcemic. It is hypocalcemic nature hormone. It stimulates the uptake of calcium ion while excessive calcium is present in the blood. जब कैल्शियम ज़्यादा होती है ब्लड में तो उस वक्त ये स्टिमुलेट करता है मिनरलाइजेशन प्रोसेस को, प्रोसेस कॉल्ड एज यानी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस in the bones. It is stimulated, this process is stimulated by the calcitonin hormone. Now generally this hormone is responsible for the mineralization process. जब हम बात करते हैं जनरली थायराइड ग्लैंड्स की और फंक्शन ऑफ थायराइड की, तो यू नो, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स एंड एज वेल एज द कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि पैराफोलिकुलर सेल जो है वो सीक्रेट करते हैं इन द थायराइड ग्लैंड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास जनरली देखा जाए तो हमारी बॉडी में अगर पर ग्राम वेट के हवाले से देखा जाए तो पर ग्राम वेट के हवाले से जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इट इज हाईली वस्कुलराइज्ड ग्लैंड पर ग्राम वेट के हवाले से अगर देखा जाए। और फंक्शन वाइज देखा जाए तो ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं जिनमें T3 हार्मोन्स एज वेल एज T4 हार्मोन्स एज वेल एज द कैल्सिटोनिन हार्मोन, जिनका काम हमारे पास सबसे पहला फंक्शन बेसल मेटाबॉलिक रेट्स BMR, इसे हम नाम देते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट्स। जो हैं हमारी बॉडी के सेल्स के जितने भी बेसल मेटाबॉलिक रेट्स हैं, हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट जो हमें जिंदा रखने के लिए लाजमी होते हैं
उन्हें मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है थायराइड हार्मोन्स का, एज वेल एज द ग्रोथ, एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, और जो माइल्ड फंक्शन है दैट इज एरेथ्रोपोयोसिस मीन्स आरबीसीज फॉर्मेशन में भी किसी हद तक रोल है, एज वेल एज मिनरलाइजेशन, इट मीन्स द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, जो कि हमने पीछे देखा कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम है एरेथ्रोपोयोसिस, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को, हमारे मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करने का काम होता है थायराइड हार्मोन्स का। अब हमारे थायराइड हार्मोन जो है, बहुत सारी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, या वी कैन से दैट थायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएशन है, जिनमें हमारे पास अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन T3 T4 हार्मोन्स की कंसंट्रेशन अगर लो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स लो सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। इस कंडीशन में आता है मैक्सेडिमा, मैक्सेडिमा में इसमें क्या होता है, जब कंसंट्रेशन टू लो हो जाती है T3 T4 हार्मोन्स की, कंडीशन इज सेड टू बी मैक्सेडिमा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवरवेट, स्लैगिश, ड्राइड स्किन ड्राई हो जाएगी, टॉलरेंट टू कोल्ड, कंफ्यूज्ड एंड डिस्पर्स्ड इंडिविजुअल। अगर क्या है, अगर कैल्शियम, अगर हमारे पास कैल्सिटोनिन एज वेल एज T3 T4 हार्मोन की कंसंट्रेशन स्पेशली लो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोथायराइडिज्म, एंड द कंडीशन जो अपीयर होती है डिजीज और डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड मैक्सेडिमा, दैट इज ओवरवेट, स्लैगिश कैरेक्टराइज्ड बाय द देन ड्राइड स्किन, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, कंफ्यूज्ड एंड डिस्पर्स्ड इंडिविजुअल। लेकिन अगर यही T3 T4 हार्मोन की कंसंट्रेशन टू लो हो जाती है इन द चाइल्डहुड, इन केस ऑफ द टू लो सिक्रेशन इन केस ऑफ चाइल्डहुड, द कंडीशन इज सेड टू बी कैरेटिनिज्म। अगर चाइल्डहुड में कंसंट्रेशन थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, स्पेशली T3 एंड T4 हार्मोन्स की, the condition is said to be keratinism, especially in the childhood. It is characterized by the stunted growth. Growth will be shunted, as well as mental retardation. मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती चाइल्ड्स में, मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मेंटल रिटार्डेशन, एज वेल एज कोर्स फेशियल एक्सप्रेशन। कोर्स फेशियल एक्सप्रेशन, मेंटल रिटार्डेशन, shunted growth, it is associated with the keratinism, especially in the childhood, low secretion of T3 and T4 hormones. If the concentration of iodine become low in the blood,
देन कंडीशन इज सेड टू बी गोइटर। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के साथ साथ या फिर हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड में आयोडीन की कंसंट्रेशन लो होना शुरू होती है तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इट बिकम इनलार्ज, द कंडीशन इज सेड टू बी गोइटर। कंडीशन इज सेड टू बी गोइटर। इट इज ड्यू टू दी लो इनटेक ऑफ आयोडीन। आयोडीन लो इनटेक की वजह से हमारे जो लोब्स है थायराइड ग्लैंड्स की ये इनलार्ज होना शुरू होती हैं, इनका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गोइटर। देन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ T3 T4 हार्मोन बिकम हाई देन कंडीशन इज सेड टू बी a hyperthyroidism. Condition is said to be hyperthyroidism. Hyperthyroidism condition में it is characterized by the loss of weight. बॉडी का जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। एक्सोथैल्मिया, आई बॉल्स जो होती हैं उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आई बॉल। सच कंडीशन इज सेड टू बी एक्सोथैल्मिया, एज वेल एज इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, एज वेल एज हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी का, एक्सोथैल्मिया कंडीशन आ जाएगी, एंड इनटॉलरेंस टू हीट। These conditions are associated with the hyperthyroidism. This is about the few disorders associated with the too low secretion and too high secretion of T3 and T4 hormones, or we can say that thyroid hormones. Now we will discuss associated gland, वो ग्लैंड जो कि हमारे थायराइड की लोब के साथ ही एसोसिएटेड होता है। अगर हम डॉर्सल व्यू देखें थायराइड ग्लैंड का तो यहाँ पर 2 pairs of glands एसोसिएटेड होते हैं which are called as parathyroid glands. These are called parathyroid glands. These glands are called parathyroid and they are 2 in numbers, 2 pairs and 4 in numbers. These glands are associated with the secretion of a hormone that is called PTH. इसे हम कहते हैं parathyroid hormones. If these are both parathyroid and calcitonin hormones, these are antagonistic to one another. This is called hypocalcemic. So ultimately this will be called as a hypercalcemic. Hypercalcemic means जब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल लो हो रहा होता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन्स को जो स्टिमुलेट करता है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। डीमिनरलाइजेशन मीन्स द लॉस ऑफ कैल्शियम आयन और लॉस ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन्स। जब बोन्स कैल्शियम आयन को लॉस करना शुरू करती हैं और ये कैल्शियम आयन डिपॉजिट होना शुरू होता है हमारे ब्लड में, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डीमिनरलाइजेशन। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीटीएच हार्मोन की, एंड दिस हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ओके, दिस इज ब्रीफ अबाउट दीज आर ग्लैंड्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह